Morning all of you, hope you all are fine. Again we are here with our another video on Jojila tunnel, and this time they are saying that they have achieved a marvelous milestone in the completion of the project, that they have excavated this tunnel completely. And then in the last video I told you that Australian tunneling method has been used to create the Jojila tunnel, and they are selectively blasting the rocks, right? And the excavation was done that in a stepwise manner. The first step is the top half of the tunnel is excavated, and and then the bottom half is being excavated, and this is completed. The first milestone has been achieved. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई क्यों पढ़े, क्या ही बेनिफिट है? तो पहले तो बेनिफिट ही दिखा देती हूँ. पहला बेनिफिट ये है कि देखो पहले क्या होता था, इन ऑर्डर टू रीच लद्दाख, you were supposed to cross the Jojila Pass, which was usually closed during the winter season, because this area is prone to landslides, right? So what will happen now, that it will not just make the travel safe during the winter season. It will not ensure just the year round access to Ladakh, but another thing is that earlier, in order to reach Sonmarg to Daras, the distance was very large, and the time it used to take for a person to go there was also huge. So now it will reduce the distance by 27 kilometer from Sonmarg to Dras, and time by 2 hours. Now this tunnel just not a tunnel, but it comprises road, bridges, okay, and then this tunnel obviously. And along with that, one important significance of this is better access to services and facility. And here we are talking about the people who are protecting our nation and contributing to its security. So they also earlier there was a disconnection of service and facility. So this is an important thing, right? For the security purpose, the significance of this tunnel is highly important, and there's no denial that this point could be a important value addition in your security note. If you're writing mains this year, use this tunnel as an example. Now let's look at this map very carefully. तो जोजिला टनल कहाँ से शुरू हो रही है? ये 13 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, and it will connect Baltal. You can see Baltal here in Sonmarg. This I was talking, and this is Dras area. So now this tunnel is connecting Baltal, Sonmarg to Dras, ठीक है? So it will reduce by the distance by 27 kilometer, okay, and the timing by 2 hours. Along with that, another important fact is that 13 kilometer long tunnel है, connect करेगी, we know that time बचाएगी, right? सोनमार्ग टू द्रास, कारगिल, लद्दाख. बाईपास करेगी ये जोजिला पास को, विच वॉज यूजुअली क्लोज्ड इन विंटर में बंद होता है. तो देखिए ना, आज इस जोजिला पास क्लोज्ड इन विंटर, ऐसे कोई स्टेटमेंट आ सकती है, तो इट इज़ राइट, विंटर में बंद होता है ये. रिड्यूस करेगी 27 किलोमीटर को, डिस्टेंस, टाइम 2 घंटे बचाएगी. टारगेट कब कंप्लीट होगा? 2028 में. मोस्ट पीपल थिंक दैट टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है. आई डोंट नो दैट. आई इंटरेक्टेड विद few YouTube video, and they were saying that Jojila tunnel ban gayi hai, and I was saying that the target has to be complete by July 2028, and that's why a clear explanation is needed on this topic. It is a need. Now let's move toward the next part. अब पता है क्या है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी को लेके जो पॉइंट आएंगे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा अबाउट जोजिला पास. दे विल से दैट the connection from Jammu Kashmir to Srinagar is crucial, and an all weather connectivity will boost our security, and you will be asked to justify it. In that scenario, you can write some of the point which I am going to mention now. So the points are like this. These are the points related to all weather connectivity. So if you are writing the answer, and if you are explaining to anyone कि क्यों ये tunnel important है, तो start like this, that 2 main highway हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, विंटर्स में 6 महीने के लिए मतलब बंद हो जाते हैं. ये श्रीनगर सोनमार्ग लेह हाईवे और लेह मनाली हाईवे जर्नली 6 मंथ या फिर उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं.
एंड ये क्लोज होते हैं, क्यों क्रॉस होते हैं? क्योंकि लैंडस्लाइड होता है, स्नो एवलांचे, एक्सट्रीम वेदर हो जाता है। और जोजिला जो ये टनल बन रही है, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। आई टोल्ड यू द रीज़न दैट सिक्योरिटी के बारे में लिख सकते हो। द पीपल हु आर द ट्रेडिशनल ड्वेलर्स जो यहाँ पे रहते हैं, और द पीपल हु आर रिसाइडिंग हेयर, द पीपल हु वर्क हेयर लद्दाख के अंदर, राइट। एंड लद्दाख जो है वो 6th शेड्यूल का भी मांग रहा था, बट वी आर saying we are not providing it because of the security reason, राइट। लद्दाख 6th शेड्यूल का स्टेटस मांग रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम ये रोड कनेक्ट कर देंगे ना भाई, सिक्योरिटी विल इंक्रीज इन दैट एरिया। दैट यहाँ पे क्या है, ये बलूचिस यहाँ पे ना दे हेयर बाल्टिस्तान वाला एरिया, गिलगित बाल्टिस्तान, राइट, पीओके कश्मीर है। एंड यहाँ पे हमारे देखो ये जो है यहाँ पे दिस रीजन जो है अक्साई चिन वाला, राइट, अक्साई चिन इधर है, हाँ अक्साई चिन दूसरी तरफ है। ये जो एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान वाला, यहाँ पे क्या है कि चाइना जो है अपना वो पास कर रही है यहाँ से सीपेक। एंड ये भी मुझे है ना इस एरिया का, यहाँ वाले कोई एरिया का ना नाम याद नहीं आ रहा है। आई जस्ट लुक एंड आई टेल यू इट इज़, आई एम नॉट गेटिंग द रिट्रीवल क्यू राइट नाउ, तो पार्डन दिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट है ना लिख सकते हो आप पॉइंटर्स के लिए। फर्स्ट की ये लोकेटेड इन इंडिया, वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है ये, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ से क्या हो रहा है कि चाइना सीपेक पास कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको क्या कहते हैं, ये एक तरह से है ना चाइना का एम्बिशन है कि जो उसका हिस्टोरिक सिल्क रूट था ना उसको रिवाइव करने के लिए, राइट। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी सुनी होगी, राइट, और हम नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहे हैं, चाइना इसको ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है। तो वी इन ऑर्डर टू काउंटर दिस, इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं कल का ना ये सियाचिन ना ले ले, या फिर लद्दाख के रीजन जिसको ये अपनी टेरिटरी में बताता है ना अक्साई चिन यहाँ पे, तो बेसिकली जिस रीजन को ये अपना बताता है कल को ये उसको मतलब ऑक्यूपाई ना कर ले, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए वी नीड बेसिकली ए कनेक्टिविटी। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट इंडियाज़ मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है ये, LAC के पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, ठीक है। अब आई विल टेल यू वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा ना LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, दिस इज़ अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, ठीक है, बट इट्स नॉट एन ऑफिशियल बॉर्डर, हम बस बोलते हैं इसको, इट्स नॉट एन ऑफिशियल बॉर्डर। एंड अदर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हमारा चाइना के साथ है, राइट। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है दैट इज़ दुरंद लाइन, और इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बीच में भी यहाँ पे इस एरिया में जो लाइन है दैट इज़ दुरंद लाइन, राइट। तो ये चीज़ें हमें कुछ है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें वीडियो के साथ देखने पे एक्स्ट्रा पता चल जाते हैं। तो कीप वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब भी कर दो, राइट, शेयर कर देना, लाइक कर देना। ना ऑल विद लिंक ये इस्टेब्लिश करेगा, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, स्विफ्ट मूवमेंट को इंश्योर करेगा डिफेंस फोर्सेस की। अच्छा, लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स आर the things which are always needed in order to keep the developing going on, ठीक है। लॉजिस्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है, ट्रैवल भी आता है, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी आते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, राइट, उस रीजन को डेवलप करने के लिए। सो मिलिट्री मैन्यूवर और ऑपरेशन रेडीनेस इन केस ऑफ हॉस्टिलिटी, अगर कल को कोई दिक्कत हो जाए इस एरिया में तो फटाफट मिलिट्री पहुँचाएँ, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बूस्ट मिलिट्री मैन्यूवर। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड स्ट्रीमलाइन कर सकता है ये मूवमेंट को राउंड द ईयर, ऑब्वियसली। ये आप डायग्राम यू कैन मेक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, दिस विल जस्ट टेक अ लिटिल टाइम। सो नाउ एक यहाँ पे ना इन्होंने ना जोजिला पास वर्सेस जोजिला टनल का दिया हुआ है। तो एक बार देखो कि जो जोजिला पास है ना, दिस इज़ एट द एलिवेशन ऑफ दिस हाइट, जोजिला टनल इज़ लिटिल लो बिकॉज वी आर कटिंग द माउंटेन, राइट। तो नीचे तो हो गई, तो अगर कल को बोलते थे एलिवेशन ऑफ जोजिला पास इज मोर देन द जोजिला टनल, भाई ऑब्वियस सी बात है ऐसा होगा ही, क्योंकि माउंटेन को काट के बीच से टनल निकाल रहे हो ना, इसकी एलिवेशन में तो फ़र्क होगा। बट इफ़ यू आर ओवर थिंकर तो गलत कर दोगे। तो दीज आर दी एलिमिनेशन ट्रिक्स जो आपको पेपर में काम आएगी, या फिर लाइक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी थिंकिंग हमेशा काम आती है। थिंक अराउंड दी स्टेटमेंट, अराउंड दी स्टेटमेंट, एंड यू फाइंड द आंसर। अच्छा, जोजिला पास नैरो है, पतला है, ठीक है, डेंजरस है,
टनल सेफ है। यहाँ पे टनल हो लैंडस्लाइड होते, देखो लैंडस्लाइड माउंटेन के ऊपर ही तो होगी, अंदर थोड़ी ना होगी। एंड यहाँ पे आई टोल्ड यू दैट दे आर यूजिंग ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। एंड पिछली बार आई टोल्ड यू दैट दे आर यूजिंग शॉर्ट क्रीट। शॉर्ट क्रीट में क्या होता है, मशीन से ना ऐसे ना ये ना सीमेंट को स्प्रे किया जाता है एंड रॉक बोल्ट का यूज़ किया जाता है। रॉक बोल्ट ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये फिट किया जाता है एंड देन द सीमेंट इज स्प्रेड एंड इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टनल बनती है। तो दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट स्ट्रॉन्ग टनल बनेगी। ओके कौन सी टेक्निक यूज़ होती है एक बार कमेंट में लिख दो। टेक 1 मिनट नाउ और कमेंट करो इस चीज़ को कि इस अभी मैंने जो टेक्निक बताई है, एक तो रॉक बोल्ट के बारे में बताया है ना, और दूसरा मैंने अभी एक क्या बताया, दोबारा देख लो। शॉर्ट क्रीट, इफ़ यू विल राइट दिस यू विल रिमेंबर इट, है ना। शॉर्ट क्रीट कितने किलोमीटर लॉन्ग है टनल, 13 किलोमीटर लॉन्ग है, राइट। कौन से एरिया को कनेक्ट करेगी, हाँ सोनमार्ग को द्रास के साथ कनेक्ट करेगी, राइट। 2 हाईवे हैं, 2 हाईवे का नाम क्या है, श्रीमार्ग सोनमार्ग लेह हाईवे, ठीक है। श्रीनगर सोनमार्ग लेह एंड लेह मनाली, ये 2 हाईवे यहाँ ये बंद रहते थे, तो इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बाकी ये एरिया स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के सिक्योरिटी रीजन की वजह से। एंड होप यू फाइंड दिस पार्ट ऑफ माई लेक्चर टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इससे इंटरेस्टिंग भाई कोई नहीं बढ़ा सकता तो एक बार लाइक ठोक देना, लाइक कर दो, मतलब ठोकोगे लाइक कर दो। अब एक बार है ना ये थोड़ा हम पढ़ेंगे इधर से, देखो व्हाट नेक्स्ट, ये आगे क्या होने वाला है इसके बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल थिंक कि भाई ये चीज़ हो चुकी है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट नेक्स्ट। So the Jojila Tunnel project have several, key component. Beside the main Jojila Tunnel are the 2 smaller one. अब ये कह रहे हैं कि जो मेन जो जोजिला टनल बनी है ना, ये तो एक छोटा सा 2 स्मॉल कंपोनेंट्स है, मतलब एक इसका कंपोनेंट है ये वाला, राइट। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है द 2 कंपोनेंट, 2 स्मॉल टनल्स बनेगी जोजिला के अंदर। मेन टनल है 13 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक हो, राइट। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर 2 स्मॉल कंपोनेंट भी बन रहे हैं, जो है 247 मीटर की एक टनल, ये 2 छोटी टनल है। फिर 1 किलोमीटर 953 मीटर लॉन्ग की बन रही है एक नीलग्रार में। 4 ब्रिजेस बन रहे हैं इस टनल में। कितने ब्रिजेस बन रहे हैं, 4 ब्रिजेस। अब ये फैक्ट नहीं पता होगा किसी को भी, राइट। सो यू शुड राइट दैट, यहाँ पे भी लिखा है कि द लार्जेस्ट जोजिला प्रोजेक्ट ऑल्सो कंप्राइजेज 4 ब्रिजेस an approach road from Sonmarg tunnel to Jojila tunnel, 3 vertical shaft, ठीक है। तो 3 vertical shaft है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अच्छा shaft क्या होता है, what is the meaning of shaft? फाइंड आउट, गूगल करो भाई, इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। आप पेपर इस साल के प्रीलिम से पता चल ही गया होगा। द लार्जेस्ट जोजिला प्रोजेक्ट ऑल्सो कंप्राइजेज 4 ब्रिजेस। कितने ब्रिजेस है, 4 ब्रिजेस। कितनी स्मॉल टनल है, 2 है, ठीक है। अब और क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए, द स्ट्रक्चर शाफ्ट क्या है, 3 वर्टिकल स्ट्रक्चर। शाफ्ट का मतलब है स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द वेंटिलेशन एंड इमरजेंसी एक्सेस, इसलिए मैंने बोला था एक बार देखो वाई। अभी यू नो दैट कुछ रैट माइनर्स थे, it was in news like 2 or 3 year back also and last year also कि rat miners are the people basically who excavate the mine, and sometime what happened that because of the landslide or something, some because of some reason, basically the tunnels opening shuts down. As a result there is no proper oxygen in the tunnel, lack of oxygen, lack of food, emergency equipments. So basically in that situation, in order to provide ventilation, shaft are needed. So this tunnel, why it's safe, because there are 3 vertical shaft, and क्या देते हैं ये, ventilation देते हैं, and second thing emergency के access देते हैं। इमरजेंसी एक्सेस मतलब कल को टनल से बाहर निकलने के और रास्ते होंगे ना एक्सकेप करने के लिए, तो वेयर फ्रॉम वेयर यू विल एक्सकेप, राइट। तो एक्सकेप करने के लिए भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। नाउ यू कैन रीड दैट द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड वेंटिलेशन एंड इमरजेंसी एक्सेस टू द टनल एट हिज हैज़ नो सेपरेट एस्केप टनल एंड 7 कट एंड कवर टनल लाइक स्ट्रक्चर, और 7 कट एंड कवर टनल लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ठीक है। कट एंड कवर
का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सम टाइम व्हेन द टनल इज़ क्रिएटेड, सपोज कोई टनल आपने किसी ने बनाई है, ठीक है, किसी माउंटेन में, तो व्हाट दे विल डू दैट, थोड़े इमरजेंसी एक्सेस के लिए वो क्या करेंगे, कुछ कट्स और बना देंगे टनल में, ऊपर भी बन सकता है, साइड में भी बन सकता है, और इसको क्या कर देंगे, तो क्लोज कर देंगे ऐसे रास्ता बना के। तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव क्रिएटेड 7 शट एंड कवर, कट एंड कवर सॉरी, कट एंड कवर इन्होंने करके ये बनाए हैं इसकी ओपनिंग, and whenever there will be emergency, so they will open it wide and they will have the people, they will rescue the people from here. So this is the reason, cut and cover, right? तो ये आ सकता है कि there are 7 cut and cover, कल को आ गया, you'll get confused भी cut and cover क्या है. So what is remaining is the balance work in the vertical shaft. We have already made the hole and have widened 6.6 meter. It is the most challenging job we are up to, and we expect to complete it in 1.5 year. ये किसने बोला है, ये कर्नल A.K. शिव कुमार ने बोला है, जो जिला टनल के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं. और अगला देखो, we also have to do the balance work for the main tunnel. We have completed the inner concrete lining of 3 किलोमीटर. इनर कॉन्क्रीट लाइन कौन से उसका मेथड का यूज़ करके किया इन्होंने, जस्ट नाउ हमने पढ़ा था शॉर्टक्रीट, है ना, शॉर्टक्रीट से. तो 3 किलोमीटर तक भी कर चुके हैं, एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रेच इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड in an year. In addition to this, we have to build a drainage system and set up a ventilation system, electrical system, and fire and flight system. So this is all about this area, this region, security purpose से, हर purpose से this tunnel is very important, and it was the dream and the ambition of the Jammu and Kashmiri people as well, that they should have a proper connection during winter. So यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर है ना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करिए उस रीजन के लोगों के लिए भी. अगर विंटर में उन्हें लॉजिस्टिक चाहिए होता है तो हार्डली उनके पास एक्सेस होता है ना. तो इन चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, उस एरिया को सेफ बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अनदर एक और चीज़ और, अगर जब हम इकनॉमी की पर्पज़ से समझते हैं ना, तो आपने कभी एक वर्ड सुना है, क्राउडिंग इन इफेक्ट. हाँ, क्राउडिंग इन इफेक्ट. तो क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या है कि सपोज इफ़ देयर इज़ एन एरिया, ठीक है, एक विलेज है, सपोज वहाँ पे क्या है 10 हाउसेस हैं, ओके, या फिर 16 हाउसेज हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे क्या रहते हैं, वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन है और एरिया बहुत बड़ा है ये, और यहाँ पे है ना, मतलब एप्पल कल्टीवेशन हो सकती है, लेकिन कनेक्शन की वजह से नहीं हो पा रही है. तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कल को इनको एक रोड बना के दे देगी, है ना, और मेन लैंड से कनेक्ट कर देगी. तो बिकॉज ऑफ इट वट विल हैपन दैट जो मेजर कंपनीज है ना, दे विल कम एंड एस्टैब्लिश देयर ऑफिस, दे विल स्टार्ट कल्टिवेटिंग एप्पल हेयर, राइट. अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एप्पल है, ये एप्पल मार्केट में बिकेंगे, यहाँ पे स्कूल्स बनेंगे, राइट, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. तो दिस इज़ क्राउडिंग इन इफेक्ट. कंपनियाँ आने लगेगी यहाँ पे लोगों को क्या करते थे, यहाँ के लोग पहले जॉब लेने के लिए दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाते थे, बट नाउ बिकॉज कंपनीज आर हेयर एंड यहाँ पे सपोज जैम बनाने वाली कंपनी आ गई है, so people will get employment here and this will be beneficial for the people also. So that's why वहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि टनल बने. So I hope this lecture was very meaningful. I have put in my heart and soul into this lecture, and I really want you to subscribe my channel for more videos and like, support and share, because this is the Guru Dakshina that all teacher can expect from people. And always remember, भगवान उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, राइट. सो इफ़ यू विल सपोर्ट दिस चैनल, दिस वीडियो विल एबल टू रीच मैनी पीपल. हो सकता है कल को भगवान आपकी भी सुन ले, लाइक वट एवर यू वॉन्ट, मे योर विशेस कंप्लीट, ठीक है. तो सब्सक्राइब दिस चैनल.